everyone. Online class, subject science, class 7th, chapter 3rd, fiber to fabric. We wear clothes to protect our body from heat, cold, dust, insects, etc. It is the basic need of our life. Clothing is made from fiber, which is a long, strong and flexible thread-like arrangement. Fibers which are obtained from plants or animals are termed as natural fibers, and the one which are man-made are now as synthetic fibers. We wear clothes made of nylon, wool, silk, rayon, etc. In this chapter we will study about wool and silk which are obtained from animal. हम आपके शरीर को गर्मी, ठंड, धूल, कीड़ों आदि से बचाने के लिए कपड़े का यूज़ होता है। यह हमारे लिए कपड़ों की मूल आवश्यकता होती है जो फाइबर से बनाया जाता है, जो लंबे, मजबूत और लचीले धागे की तरह होते हैं। पौधे या जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है, और जो मानव निर्मित होते हैं इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। हम नायलॉन, ऊन, रेशम, रेयान आदि से बने कपड़े पहनते हैं। इस चैप्टर में हम ऊन और रेशम के बारे में अध्ययन करेंगे, जानवरों से प्राप्त किरण के बारे में भी। Wool is the most commonly used animal fiber. Wool is the short, wavy hairs which covers the body of a sheep. Actually, wool is a modified form of hair that grows with waviness. Because of the waviness of wool, the woolen fabrics have a greater bulk and hence trap more air. Due to this, woolen fabrics keep us warmer during cold winter days. Wool comes from sheep. Actually, wool is obtained from the fleece of sheep. Sheep grow wool on their body, and once a year this wool is shed. Besides sheep, some other animals also give us wool. ऊन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पशु फाइबर है। जो ऊन मुलायम, लहरदार या घुंघराले बाल जैसा होता है, जो भेड़ के शरीर को ढके रहता है। दरअसल ऊन बालों को एक संशोधित रूप होता है जो लहराते हुए बढ़ता है। ऊन के लहराते होने के कारण ऊनी कपड़ों में अधिक मात्रा में सूती कपड़े होते हैं और इसलिए अधिक हवा फंसती है। इसी ऊनी कपड़ों के कारण हम सर्दियों के दिनों में गर्मी रहती है। सर्दियों के दिनों में ऊन भेड़ से आते हैं। वास्तव में ऊन भेड़ों के ऊन या बाल से प्राप्त होते हैं। भेड़ के बच्चे अपने शरीर पर ऊन उगाते हैं और साल में एक बार यह ऊन उनसे काटा हुआ। भेड़ों के अलावा अन्य कुछ जानवर भी हैं जो इससे हमें ऊन प्राप्त होते हैं। Animals that yield wool. Wool comes from the animals like sheep, goat, yak, camel, llama, and alpaca. In other words, the wool yielding animals are sheep, goat, yak, camel, llama, and alpaca. The wool yielding animals wear a thick coat of hair on their body. It is this hair which gives us wool. Actually, the wool yielding animals have a thick coat of hairs on their body to keep them warm during cold winter season. The hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, so the air trapped in hair of these animals prevent their body heat from being lost to cold surrounds that keep them warm in winter. This is why the hair of these animal is removed only once in a year at the beginning
of summer season, they can survive in hot weather without air, and by the time winter comes, the thick air grows again on the body of these animal. ईडवेल ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊँट, लामा और अल्पाका जैसे जानवरों से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऊन उपज देने वाले जानवर भेड़, बकरी, याक, ऊँट, लामा और अल्पाका हैं। ऊन की उपज वाले जानवर अपने शरीर पर बालों का एक मोटा कोट धारण करे रहते हैं। यह बाल ही हैं जो हमें ऊन देते हैं। दरअसल सर्दी के मौसम के दौरान ऊन रखने वाले जानवरों के शरीर पर बालों का एक मोटा कोट होता है। बाल एक बहुत हीट एयर का जाल है जो गर्मी का एक खराब कंडक्टर है। तो इन जानवरों के बालों में फंसने वाली हवा उनके शरीर को ठंड वातावरण में खो जाने से रोकती है और सर्दियों में उन्हें गर्म रखती है। यही कारण है कि इनमें ये बाल या ऊन गर्मियों के मौसम की शुरुआत में जानवर को साल में केवल एक बार हटाया जाता है। वह गर्म मौसम में जीवित रह सकते हैं बिना बाल का, और सर्दियों के आने तक इनके शरीर पर फिर से घने बाल उग जाते हैं। Wool is most commonly obtained from sheep. Sheep are reared in many parts of India for getting wool. The names of some of the breeds of sheep reared in our country for obtaining wool, the quality of wool obtained, and the names of states where these sheep are found are given in the table below. ऊन सबसे अधिक भेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को भारत के कई हिस्सों में पाला जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में पाले गए भेड़ों की कुछ नस्ल के नाम दिए गए हैं, जो उनकी गुणवत्ता और उन राज्यों के नाम जहां ये भेड़ पाई जाती है नीचे दिए गए टेबल पर बताए गए हैं। Production of wool. Wool comes mainly from sheep. In order of obtained wool, sheep are reared and their hair is cut and processed into wool. We will first discuss the rearing and breeding of sheep and then describe how the sheep's hair are cut and processed to make wool. ऊन का उत्पादन मुख्य रूप से हमें भेड़ से प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को पाला जाता है और नस्ल की जाती है। उसके बाल काटे हुए हैं और उनको संसाधित हम पहले भेड़ को पालन और प्रजनन पर चर्चा करेंगे और फिर वर्णन करेंगे कि कैसे भेड़ के बाल ऊन को काट कर ऊन बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। भेड़ों को पालन और प्रजनन। भेड़ों के पालने का मतलब भेड़ की देखभाल करना है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने से, जो आश्रय और स्वस्थ देखभाल के लिए होता है। The person who rears or look after the sheep are called shepherd. Sheep are herbivorous and prefer to eat grass and leaves, so shepherds take the herds of sheep to countryside for grazing. Apart from grazing grass, the sheep are also fed mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaf, grain and dry fodder. Curtain braids of sheep have a thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities. These are called sheep of good breed. Such sheep are selectively bred by choosing at last
one parent sheep of good breed, so the breeding of sheep is done to obtain such breeds of sheep which yield good quality wool in large quantities. This raises the quality and quantity of wool produced. Once their reared sheep have developed a thick coat of hairs, the hair is cut off for getting wool. The cut off wool coat of a sheep is called fleeces. The fleeces consist of soft woolen fibers. अब लोग क्या होता है, भेड़ चराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें चारवाहा कहा जाता है। भेड़ के बच्चे होते हैं और घास और पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, इसलिए चरवाहे भेड़ के झुंड को चराने के लिए देहात में ले जाते हैं। घास चराने के अलावा भेड़ को दाल, मक्का, ज्वार, तेल, केक का मिश्रण भी खिलाया जाता है, जो निष्कर्षण के बाद छोड़ दिया जाता है। तेल के बीज से और खनिज सर्दियों में भेड़ को इंडोर में अंदर रखा जाता है और पत्तियों, अनाज और सूखे पर फीड किया जाता है। चारों भेड़ के कुछ नस्लें अपने शरीर पर बालों का एक मोटा कोट रखती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के ऊन मिलते हैं। इन्हें अच्छी नस्ल का भेड़ कहा जाता है। ऐसे भेड़ अच्छी नस्ल के कम से कम एक पालक भेड़ को चुनकर चुनिंदा नस्ल की होती हैं। तो भेड़ों की ऐसी नस्ल प्राप्त करने के लिए भेड़ों का प्रजनन किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के लिए ऊन प्राप्त होती है। यह उत्पादित ऊन की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है। एक बार जब पाले हुए भेड़ को बालों का एक मोटा कोट विकसित किया जाता है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए बाल काट दिया जाता है। भेड़ के ऊन को कटे हुए टुकड़े त्वचा की एक पतली परत के साथ को ऊन कहा जाता है। ऊन में नरम ऊनी रेशे होते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। देयर इज ए लॉन्ग प्रोसेस विच इज फॉलोड टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम द फ्लेश of sheep. A sheep or yoke body has a thick coat of hair now as a fleece. The step of processing of fiber into wools are उनके फाइबर का प्रसंस्करण एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका पालन भेड़ के ऊन से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक भेड़ या याक के शरीर के बाल मोटे तौर पर मोटे बालों के रूप में जाना जाते हैं। ऊन के फाइबर्स के प्रसंस्करण के चरणबद्ध होते हैं। Shearing. The first step involves shearing. The process of removing the fleece using special clipper is called shearing. Shearing is done manually with a razor or with the help of a shearing machine. Generally, hair is removed during the hot weather, which enables sheep to survive without the protective coat of hair. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin which is removed along with flesh is dead. बाल काटना। पहले कदम में बाल काटना शामिल है। ऊन के पंखों के विशेष कतरनों को हटाने की प्रक्रिया को असर कहा जाता है। कतरन मैनुअल रूप से के कारण साथ में श्रवण की सहायता से किया जाता है। आमतौर पर बालों को गर्म मौसम के दौरान हटा दिया जाता है, जो भेड़ को बालों के सुरक्षात्मक कोट के बिना जीवित रहने में सक्षम बनाता है। बाल काटना में चोट नहीं करता। भेड़ त्वचा के सबसे ऊपरी परत बन गई होती है, जो पलायन के साथ हटा दी जाती है। Scouring. The sheared fleece of sheep has dust, dirt, oil, grease, etc. So they are cleaned and washed with detergent and water in a tank. Scouring is the process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, grease, or any unwanted particles.
डेज स्कोरिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ मशीन। भेड़ों को कटा हुआ भाग धूल गंदगी तेल ग्रीस आदि से होता है, इसलिए उन्हें एक टैंक में डिटर्जेंट और पानी से साफ और धोया जाता है। स्काउटिंग धूल गंदगी तेल या किसी भी अवांछित कणों को हटाने के लिए भेड़ के ऊन को धोने वाला प्रोसेस होता है, जो इन दिनों मशीनों की मदद से पौधारोपण किया जाता है। थैंक यू।